Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start our class 11th history, chapter 11, path to modernization. In this chapter, we are discussing about the development of Japan and China. My dear, we have also studied about the role of the scholar, about the role of the philosopher, about the role of the intellectual people who wrote the various articles that how they can improve their economy, that how they can improve their own culture, how they can make develop their country. My dear, this is the very interesting and important chapter. This is last chapter, so that's why you have to focus on every and each section. I hope you have remember that in my last class, in my last video, I taught you about that the topic, the previous topic that was the Meiji Restoration. Topic the Meiji Restoration. In this topic, we had studied that the emperor system, the development of the political and diplomatic relation between Japan and other countries, how America entered in Japan and Japanese politics, and role of the the emperor. These are points we discussed. My dear, today we are going to study about the next topic, that is the modernizing the economy. I hope in my last class little bit information which was given by me. Okay, let's start. The modernizing the economy, the another important part of the Meiji reform was the modernizing of the economy. Funds were raised by the levying in the agricultural tax. Japan's first railway line between Tokyo and the port of Yokohama was built in 1817 to 72. Textile machinery was imported from Europe. Railway that was established two cities, Tokyo to Yokohama. It was built in 1872 to 72. Machineries, textile machineries that was imported. Foreign technicians were employed to train workers as well as to each the universities and the schools, and the Japanese students were sent abroad. In 1872, the modern banking institutions were launched. The companies like Mitsubishi and the major the shipbuilders, so that the Japanese traders was from now and they carried in Japanese ship Jaibitsu. Large business organizations controlled by the individuals, families, dominated by the economy till after the Second World War. The population, 35 million in 1872, increased to 55 million in 1920. To reduce the population's pressure to government actively encouraged the immigration first to the northern island to Hokkaido, which had been the largely autonomous area where the indigenous people called the Ainu lived, and then to Hawaii and Brazil, as well as to the growing colonial empire of Japan. Within Japan, there was a shift to town as the industry developed. By 1925, 21% of the population lived in the cities. By 1935, the figure had gone up 32% industrial work. The next topic is that I hope there is no need to explain that topic because in my last video I have already explained. The next topic is the industrial workers. The number of the people in the manufacturing increased from 7 lakh in 1817 to 4 million in 1913. From 1870 to 1913, the population was increased in a huge amount. It increased from 7 lakhs to 4 million, 7 lakh to 40 lakhs. There is a very vast amount. Most of them worked in units employing less than 5 people and using neither machineries nor electric power. Over half of those employed in the modern factories were women, and it was women who organized the first modern strike in 1886. After 1900, the number of men began to increase, but only in the 1930s
did male worker begin outnumber women. My dear, author want to inform about the condition of the worker. Here, author clearly explain कि मजदूरों की संख्या, औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1817 में 7 लाख से बढ़कर 1930 तक आते आते 40 लाख पहुंच गई। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे और जिनमें मशीन और इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल होता था। इन आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं थीं। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी। 1900 के बाद एक बदलाव आया। 1930 के डिकेड्स तक आते आते पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हो गई। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी, जो 1920 तक आते आते इनकी संख्या 2000 हो गई। महज 11 सालों में संख्या जस्ट डबल हो गई। 1930 के टिकट्स में 4000 हो गई, 2 टाइम वृद्धि हुई। और इसके बावजूद 1940 तक आते आते बदलाव का जापान में जो चरण चला वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1940 तक आते आते 5,50,000 कारखाने में 5 से कम मजदूर काम करते थे। मतलब एक छोटे कारखाने एक बड़ी संख्या में मिलने लगे। माय डियर, व्हाट आई एम सेइंग, if you will read the line which is given in your book, that is the very important lines to inform you that the increasing of the worker in the factory, that the size of the factories also began to increase. The factories employing more than the 100 workers, just over 1,000 in 1909, jumped to over 2,000 by 1920 and 4,000 by the 1930s. Yet even in 1940 there were over 550 lakh workers workshop. My dear, the employed less than 5 employees. This sustained the family-centered ideology. Just and nationalism was sustained by a strong the patriarchal system under an emperor who was like the family patriarch. The rapid and the unregulated growing of the industry and the demand for natural resources such as timber led to environment destructions. Tanaka Sojo, elected to the first House of Representatives, launched the agitations against the industry's population in 1897 with 800 villagers in the mass protest for urging the government to take action. My dear, that is the first time when Japan felt that the industrialization is against of human health. So that's why the social reformer Tanaka Sojo, who was the first representative of Japanese parliament, who launched a movement against the industrialization, who want to aware of their own people that their health is very important. My dear, कहता है कि कारखानों की जब मजदूरों की संख्या बढ़ी, 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में जब 1000 थी, 1920 तक आते आते 2000 हुई, 1930 तक आते आते 4000 हुई और 1940 तक आते आते 5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे। संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। इससे जो न्यूक्लियर फैमिली की कॉन्सेप्ट थी, परिवार केंद्रित विचारधारा, वो पनपी। उसी तरह से राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था, पैट्रिकल सिस्टम का सहारा था, जहाँ सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था, मुखिया माना जाता था। उद्योगों की तेजी से अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तनाका सोजो ने 1897 में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा। जब 800 विलेजर्स गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को मजबूर किया। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. I hope you are getting understand that the awareness of the Japanese people for nature, प्रकृति के प्रति जो अवेयरनेस उनके प्रति आ गई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. माय डियर,
the Tanaka Sojo, their role was very important, who was the first House of Representative, who launched the first agitations against the industrial pollution. इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ उनका पहला आंदोलन उन्होंने छोड़ा. हुआ तनाका सोजो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तनाका सोजो कौन थे? तो आप राइट साइड में देखिए, एक लिखा हुआ है हुआ तनाका सोजो. कहता ही वॉज बॉर्न इन 1841 to 1931. He died. Their whole life that was devoted for their own nation. The self-taught son of the farmer rose to become a major political figure. He participated in the popular rights movement in the 1880s movement, demanding the constitutional government. He was elected a member to the first Diet. He believed that the ordinary people should not be sacrificed for industrial progress. The Asio mine was polluting the Waters River, running 100 square mile of farmland and affecting 1,000 families. The agitations forced the company to take population control measures so that by 1904 हार्वेस्ट पर नॉर्मल. माय डियर, कहता सीधा सीधा कि जो तनाका सोजो थे एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुए रिफॉर्मर थे. तनाका सोजो एक फार्मर परिवार में पैदा होने वाले एक सामान्य से आदमी थे. तनाका सोजो ने पहली बार अपने इस बात के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की कि नेचर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है. तनाका सोजो की पढ़ाई लिखाई घर में हुई, अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक पर्सनालिटी के रूप में वो उभरे. 1880s के दशक में उन्होंने लोकतांत्रिक हकों के लिए, जनवादी हकों के लिए, जनवादी अधिकारों के लिए आंदोलनों में हिस्सा लिया. इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार को या इनके जो इस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की मांग की. वो पहली संसद, जापान की संसद को डाइट कहते हैं, वो पहली डाइट के सदस्य चुने गए. उनका मानना था औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों के बलि नहीं दी जा सकती, नहीं दी जानी चाहिए भी. He demanding the constitutional government. He was elected member of the first Diet. He believed that ordinary people should not be sacrificed for industrial progress. That is the very important things. आसियो खान से, वातार से नदी में पोल्यूशन फैल रहा था, जिसके कारण 100 वर्ग मील की फार्मिंग लैंड नष्ट हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे. 1000 परिवार प्रभावित हो रहे थे. आंदोलन के चलते कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़े. इसमें 1904 तक सफल, जो 1994 तक फसल सामान्य स्तर से नीचे रहे. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. माय डियर, aggressive nationalism. The Meiji Constitution was based on the restricted franchises and created to diet. The Japanese used the German word for parliament because of the influence of the German legal ideas with limited power. The leaders who brought about the restoration continued to exercise power and even established political parties. Between 1918 and 1931, the popular elected prime minister formed the cabinets. Thereafter, they lost power to national unity cabinets formed across party lines. The emperor was the commander of the force, and from 1819, this was the interpreted to mean that the army and the navy have independent control in 1890. The prime minister ordered that only the serving generals and admired could become the ministers. This strengthened
of the military, together with the expansion of Japan's colonial empire, was connected with the fear that Japan was the mercy of the Western power. This fear was used to silence opposition to military expansion and higher taxes to found the armed forces. माय डियर, अब यहाँ से जापान के आक्रामक राष्ट्रवाद का हमें चरण दिखाई देता है। आप इन पिक के आधार पर भी देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर एक आक्रामकता, एक अग्रेसिवनेस भरा जा रहा है। यहाँ पे आदर कहता है कि जब मेजी का संविधान बना तो मेजी संविधान में सीमित अधिकारों पर आधारित था। मेजी संविधान में नागरिकों को अधिकार एक लिमिटेड दिए गए थे, कुछ लिमिट उनकी थी, और उसे जो ये राइट्स था, संविधान था, उसको डायट ने बनाई। कहने का सेंस ये है कि मेजी संविधान सीमित मताधिकारों पर आधारित था और उसने डायट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। डायट शब्द जापानियों ने संसद के लिए उस समय के लिए लिया जो डायट शब्द जापानियों ने संसद के लिए उस जर्मन शब्द का प्रयोग किया था क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। शाही पुनर्स्थापना करने वाला नेता सत्ता में बने रहने और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन भी किया। 1918 और 1931 के दौरान जनमत से चुने हुए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथ में अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था। 1890 से ये माना जाने लगा कि जो आर्मी थी और जो नेवी, उसका नियंत्रण स्वतंत्र है। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेशों, कॉलोनियल कंट्रीज की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने में भी इस्तेमाल किया गया। माय डियर, यहाँ एक चीज़ क्लियर कह दें कि एक तरफ जापान में विकास हो रहा था, एक तरफ जापान आर्थिक ताकत बन के दुनिया में उभर रही थी, तो दूसरी तरफ जापानी संविधान के अनुसार जो इम्परर सिस्टम थी, सम्राट व्यवस्था के अनुसार सरकार सम्राट, ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री के मिलने से बनी थी। इनके मिलने से ही गवर्नमेंट का गठन हुआ था। इसमें आर्मी के लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। आप 1918 से 1931 के बीच जो मंत्रिपरिषद बनी, उन मंत्रिपरिषद का क्या हासिल हुआ? आपका बुक कहता है कि यद्यपि विभिन्न पार्टियों के लोग मंत्रिपरिषद में आए, लेकिन उन लोगों ने अपनी सत्ता खो दी। सम्राट तीनों सेनाओं का कमांडर था। 1890 के डिकेड्स 1890 से 1899 के बीच का समय देखिए। एक नियम पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्री वही बनेगा जो सेवारत जनरल या एडमिरल हो सेना में। अब इसके साथ साथ सेना को मजबूत बनाने का कार्य जापान में तेजी से चला। जापानी लोग अपनी कॉलोनियल एम्पायर, कॉलोनियल बाउंड्री को एक्सपेंड करना चाहते थे। वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और जापान में एक डर ये भी था कि लोगों को ये लगता था कि जापान कहीं विदेशी शक्तियों का पिछलग्गू बन के न रह जाए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माय डियर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक है पश्चिमीकरण और परंपरा, ट्रेडिशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन इस टॉपिक को देखें तो इस टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। फुकुजावा युकिची 1835 to 1901 तक के बीच
वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशंस को बताने के पहले फुकुजावा युकेची पे थोड़ा सा चर्चा कर लेना अच्छा इसलिए होगा क्योंकि आप जापान की स्थिति को समझ सकते हैं इसको पढ़ के। फुकुजावा युकेची कौन थे? फुकुजावा युकेची का जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ। सामुराई का अर्थ आपको पता है, मैंने वॉरियर बताया था, वॉरियर ग्रुप इज कॉल्ड सामुराई। सामुराई परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई। उन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान को पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी सीखा। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में ट्रांसलेटर के रूप में अपॉइंट किए गए। इससे उन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखा, आम बोलचाल की भाषा में लिखा। वह किताब बहुत ही लोकप्रिय हुई। उन्होंने एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया जो आज कियो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। मेरोकुसा संस्था के प्रमुख सदस्यों में से थे। ये संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करती थी। अपनी एक किताब ज्ञान के लिए प्रोत्साहन गाकू नोन नो सुसुमे में उन्होंने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने आधुनिक कारखानों व संस्थाओं के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक सार तत्व को भी बढ़ावा दिया। उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा यही सांस्कृतिक सार तत्व ही है। इसके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा। उनका सिद्धांत था, स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, न ही इंसान को इंसान के नीचे बनाया। ये चीज़ें जो फुकुजावा युकेची ने कही, जापानी लोगों के बीच जापानी संस्कृति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल निभाई।